welcome to CAP 101, that is Current Affairs Point 101. Hope you all are really doing well, and today is 6th of July 2021. So, we are here to discuss the current affair for the day. So, without wasting much time, let's get started. And yeah, if you think the content is worthwhile, do not forget to hit the like button and to subscribe our channel. So, and apart from that, if you are a subscriber, then hit the bell icon beside the subscribe button so that you get notification whenever new video is uploaded. So, what's apart? Now let's begin with the content. So the first content which we are going to discuss is the World Bank, is related to World Bank. So World Bank and US, that is United States, signed 32 million US dollars a loan for Mizoram. तो एक आज का जो आर्टिकल है that is related to the loan between the World Bank and the state of India, that is Mizoram. तो मिजोरम को वर्ल्ड बैंक ने 32 यूएस डॉलर का यूएस मिलियन डॉलर का लोन दिया है. So regarding that, so why the loan has been granted and such stuffs will be discussing right now. So for strengthening the healthcare system, World Bank, this is D, okay, here D is missed. So World Bank has sanctioned an amount of around 32 million US dollars for loan agreement. This will improve the infrastructure, healthcare infrastructure and quality certification of health services to the citizen of Mizoram. तो मिजोरम के citizens के मिजोरम में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स एंड अदर स्टफ्स को बिल्ड अप करने के लिए जो है ये अमाउंट सेंक्शन किया गया है. तो बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो इम्पोर्टेंट जो टेकवेज है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड उसे एक और बार डिस्कस कर लेते हैं. तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन वाशिंगटन डीसी. जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो है डेविड मालपास और एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक. ओके, अब बात आई है सीएम ऑफ मिजोरम. क्योंकि मिजोरम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट कि हम मिजोरम के इम्पोर्टेंट टेकवेज भी जाने. तो मिजोरम के बारे में बात कर लेते हैं. सीएम ऑफ मिजोरम इज फू जोरमथम. तो फू जोरमथम जो है वो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के, और जो प्रेजेंट में गवर्नर है मिजोरम के दैट इज पी एस श्रीधरन पिल्लई. तो पी एस श्रीधरन पिल्लई जो है वो गवर्नर है और फू जोरमथंग जो है फू जोरमथंगम सॉरी फू जोरमथंगा जो है वो प्रेजेंट में सीएम है मिजोरम के. Now let's discuss the second point. So SBI, at the State Bank of India, collaborated with Fab India to launch Fab India SBI card. तो SBI, that is State Bank of India ने कोलैब किया है Fab India के साथ to launch a Fab India Fab India SBI कार्ड. तो Fab India SBI कार्ड को लॉन्च करने के लिए SBI ने कोलैब किया है Fab India के साथ. वेल, बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द टॉपिक, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग बैंकर्स ऑफ बैंक. मैंने पूछा था कि बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक किसे कहा जाता है, तो उसे एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं. तो बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक इज RBI. तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज नोन एज बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक. तो अब आई थिंक आपको आंसर मिल गया. एंड यस, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, राइट. सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. तो बता दिया मैंने कि बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक इज RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब आते हैं वापस SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज कंट्रीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड, दैट इज country's largest card issuer, and Fab India, a retail platform for handicraft, okay, have joined the hands to launch Fab India SBI. So SBI, State Bank of India card, so which is a State Bank of India का ही एक part है, which is launching this card along with the Fab India. Fab India जो है एक retailing platform है for handicrafts. So ये दोनों ये दोनों जो institute है, they are going to launch Fab India SBI card. अब जान लेते हैं. So what is the main purpose? The main purpose is to is to improve the digitalization of Indian economy. अब बात आई है SBI कार्ड की. तो SBI कार्ड के प्रेजेंट में MD और CEO है राम मोहन रॉय. तो राम मोहन रॉय इज द प्रेजेंट MD एज वेल एज CEO ऑफ SBI कार्ड. अब देखिए SBI कार्ड और SBI में डिफरेंस है. तो SBI कार्ड के MD और CEO हेड है राम मोहन राय, लेकिन SBI के जो चेयरपर्सन है जिसका वो है दिनेश कुमार खेरा. तो SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन दैट इज दिनेश कुमार खेरा. अब आते हैं एक और चीज दैट इज हेडक्वार्टर. तो SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है हरियाणा में
और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसे थोड़ा सा देख कर याद रखिएगा कि एसबीआई कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो है हरियाणा में और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इंडिया यूएस, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल पैसेज। तो एक चीज जो है, ये जो पैसेज नामक मिलिट्री एक्सरसाइज है वो काफी दिनों से इंडिया और यूएस के बीच में चल रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस साल 2021 में कौन सा एडिशन, पैसेज का कौन सा एडिशन जो है इस साल कंडक्ट कराया गया। ओके, तो देख लेते हैं आगे कंटेंट। इंडियन नेवी एंड एयर फोर्स along with US Navy carrier strike group Ronald Reagan started military drill passage in Indian Ocean। तो पैसेज जो है, पैसेज नामक जो एक्साइज है, मिलिट्री एक्साइज, वो इंडियन ओशन में कंडक्ट कराया गया था और इसका जो ड्यूरेशन था इट वाज 2 days, 2 दिन का था ये। एंड 2 दिन के ड्यूरेशन का था ये। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेवी आई सॉरी द इंडियन नेवी का जो आईएनएस कोची है और टेगालॉक है, अपार्ट फ्रॉम दैट P-81 लॉन्ग रेंज मरीन टाइम पेट्रोल क्राफ्ट एंड MiG-29K फाइटर प्लेन जो है वो भी इस पैसेज एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो ये जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स से ये इक्विपमेंट्स पार्ट ले रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि पैसेज एक्सरसाइज इस बार 2021 में कौन सा एडिशन इसका कंडक्ट कराया जा रहा है। सो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, पैसेज इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। Now let's move forward towards the fourth point of discussion. So the fourth point of discussion is ninth Asian Ministerial Energy Roundtable to be hosted by India. तो जो एनर्जी मतलब कि एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल है वो उसका 9th एडिशन इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। सो लेट्स सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। तो इंटरनेशनल एनर्जी फोरम ने अनाउंस किया है दैट इंडिया, this is has I'm extremely sorry, this is has agreed to host the ninth Asian Ministerial Energy Roundtable in 2022। तो इसका जो 9th एडिशन है वो 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा और इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा। राइट, नाउ द इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी एजेंसी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ अराउंड 71 कंट्रीज। तो इंटरनेशनल एनर्जी फोरम में टोटल 71 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फाइन, तो आपको जो याद रखने वाली बात है दैट इज 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल जो है वो हो रहा है इंडिया में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और कब हो रहा है, 2022 में। दिस 2 points आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में कहा जा रहा है कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन ऑनर्स इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के हिसाब से कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को got the highest rank in this। And let's see the content behind it। So that is Director General's role of excellence honor given to Cochin International Airport। तो Cochin International Airport को ये honor दिया गया because in the past few years it have really performed very well, and the services were consistent, and apart from them they have provided excellent service to the passengers over there. So that's why it have got the honor। Now let's move forward towards the sixth point of discussion। तो सिक्स पॉइंट पे कहा गया है, एक बुक लॉन्च की गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। काफी फेमस राइटर है, इवन मैंने भी इनकी काफी सारी बुक्स पढ़े हैं एंड आई रियली फील्ड इट फुलफिलिंग। सो यस, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स। सो और हाँ, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपने स्कूल टाइम में रस्किन बॉन्ड की पोएम एंड स्टोरीज तो पढ़े ही होंगे। ओके, so yeah, jokes apart, let's and focus towards the content। Yeah, Ruskin Bond's book title, that is It's a Wonderful Life, is launched। तो रस्किन बॉन्ड का जो बुक है इट्स अ वंडरफुल लाइफ रिसेंटली लॉन्च किया गया है, उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है। तो रस्किन बॉन्ड इज बेसिकली अ इंडो ब्रिटिश ऑथर। सो आपको ये चीज ऑब्वियसली पता तो होगा ही। रस्किन बॉन्ड जो है ही इज अ इंडो ब्रिटिश ऑथर एंड ही इज ऑल्सो अ रेसिपेंट ऑफ पद्मश्री एज वेल एज पद्म भूषण। तो उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। एंड रिसेंटली उनकी जो बुक लॉन्च हुई है इसका नाम भी आपको याद रखना है, इट्स एन वंडरफुल लाइफ। और एंड अनदर थिंग इज रस्किन बॉन्ड जो है देहरादून में एक बुक स्टोर है, वहाँ पे वो बैठते हैं, यू कैन गो एंड मीट हिम एज वेल। सो इफ आई गेट अ चांस डेफिनेटली आई विल गो। यस,
Jokes apart, now let's focus again. So his first novel, जो उनका जो पहला novel है, Room on the Roof. So रस्किन बॉट का जो पहला novel है, that is Room on the Roof. ये भी आपको याद रखना है. And It's a Wonderful Life book जो है वो भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही लिखा गया है. अब जो पब्लिशिंग ग्रुप है, that is एल्फ बुक कंपनी. तो एल्फ बुक कंपनी ने जो है रस्किन बॉन्ड की जो बुक है रिसेंटली इट्स अ वंडरफुल लाइफ वो पब्लिश किया है. फाइन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. केली मैकवेन ब्रेक 100 मीटर बैक स्ट्रोक वर्ल्ड रिकॉर्ड. तो केली मैकवेन जो है उन्होंने 100 मीटर का बैक स्ट्रोक जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है. सो उनकी जो टाइमिंग थी दैट वाज 50 सेकेंड, 57 सेकेंड एंड 45 मिली सेकेंड. तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है. एंड प्रीवियसली द वर्ल्ड रिकॉर्ड वाज 57 सेकेंड पॉइंट 57 मिली सेकेंड. तो 57 सेकेंड 57 मिली सेकेंड को उन्होंने क्रॉस किया है. एंड शी हैव एंडेड अप बिफोर दैट, दैट इज 57 सेकेंड 45 मिली सेकेंड. सो द पर्सन बिलोंग्स टू साउथ ऑस्ट्रेलिया. तो दैट दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर. दिस इज स्विमिंग कंटेस्ट, स्विमिंग का कंटेस्ट था ये, जिनमें इन्होंने भाग लिया था. एंड शी हैव ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. सो एट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है, जो कि न्यूज आर्टिकल में है, न्यूज में है, दैट इज वर्ल्ड विटलिगो डे. ये मैंने लास्ट वीडियोस में मिस कर दिया था. दैट्स व्हाई आई थॉट टू टेक इट आउट. एंड काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज रेज होते हैं विटलिगो से रिलेटेड, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये बीमारी होती है. दिस इज बेसिकली अ स्किन डिसऑर्डर. उसमें क्या होता है कि स्किन में पैचेस बन जाता है. आपने देखा होगा बहुत लोगों को स्किन डिसऑर्डर होता है कि स्किन में पैचेस बन जाते हैं. स्किन के कुछ पार्ट जो है लाइटली कलर होते हैं, कुछ पार्ट डार्क कलर होते हैं. सो वो जो डिजीज है दैट इज vitiligo. So I missed out in the previous video, so I thought to include this one in this video. So yeah, so this is observed in 25th of June. ये जो विटलिगो डे है, वर्ल्ड विटलिगो डे, वो 25th जून को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 2011. Or this is a skin disorder. So yes, if you find such person in your locality, please don't underestimate or make them shy for their appearance, because we all are here and we should not discriminate someone on the basis of any of the any of the weakness the person is having, right? So yes, here comes the end of today's content. I hope it was worthwhile for you. If it was, not forget to hit the like button and to subscribe to our channel. So yes, stay tuned, and tomorrow again at 7 a.m. I'll be uploading the content related to the next day. So till then, stay tuned. Bye bye. Jai Hind.